Assalamualaikum, I'm Isha, roll number 1002 and the presentation topic is amino acid analyzer. So content हम डिस्कस करें. कंटेंट में हमने क्या डिस्कस करना है? इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, टाइप्स, वर्किंग एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन. सो इंट्रोडक्शन क्या है कि अमाइनो एसिड एनालाइजर स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम ऑप्टिमाइज फॉर एनालिसिस ऑफ फ्री अमाइनो एसिड. मतलब कि अमाइनो एसिड एनालाइजर जो है वो स्पेशली हम किसके यूज़ करते हैं? एनालिसिस ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स के लिए. देन इसका पर्पस क्या है, किस लिए हम कहाँ हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट, डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस सच एज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, then plant and animal tissues, then broth and fruits, then beverage juices, and last one is detection of presence of hydrolyzed amino acid such as found in proteins, collagen, peptides and processed foods. तो इन ये पर्पस है जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अमाइनो एसिड एनालाइजर. सो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर उन्होंने कुछ दिखाया हुआ है कि अमाइनो एसिड एनालाइजर किस तरह का है, इसके अंदर क्या यूज़ होता है? रिएजेंट बॉक्स यूज़ होता है, डिटेक्टर यूज़ होता है, नाइट्रोजन गैस कंट्रोल यूनिट, रिएक्शन यूनिट, कोलम ओवन, ऑटो सैंपल, हाइड्रोजन रिएजेंट, पंप एंड लास्ट वन इज लिक्विड वेस्ट टैंक एसेसरी. सो की फीचर्स क्या है? अमाइनो एसिड एनालाइजर इज फुली ऑटोमेटेड है, इनेबल टू एनालाइज अमाइनो एसिड ऑटोमेटिकली विदाउट सैंपल प्रिपरेशन, reproducible results while minimizing errors between operators. You don't require to prepare reagents and solvents because all the necessaries are provided. And last one is you can easily analyze 40 kinds of primary and secondary amino acid with pre-established analysis method. ये इन्होंने कुछ की फीचर्स बताए हुए हैं इसके अमाइनो एसिड एनालाइजर के. तो प्रिंसिपल हम बात करते हैं, किस प्रिंसिपल के बेस पे जो है ये अमाइनो एसिड एनालाइजर काम करता है. So the system utilizes ion and exchange chromatography incorporating post-column reaction with nin-hydrogen and subsequent detection in the visible region spectrum. इसका मेन क्या है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के तौर पे ये यूज़ करते हैं. अब पोस्ट कॉलम रिएक्शन क्या है? उन्होंने क्या इम्प्रूव सेंसिटिविटी फॉर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, inorganic ions, pesticides and other samples. In post-column reactions, column influent is mixed with the reagent before it enters the detector. So types of amino acid analysis की बात करें, there are three groups of tests are important. Number first is screening test. This test is done to measure the levels of amino acid in the blood. Then second one is quantitative test to monitor the treatment or confirm an initial diagnosis. And last one is specific test that identify an unknown amino acid. Last point उन्होंने बताया the amino acid analyzer perform the quantitative test. सो वर्किंग की बात करें, इस किस वर्क करता है? द सैंपल गो थ्रू 4 स्टेप. नंबर फर्स्ट इज ऑटो सैंपल, नंबर सेकंड सेपरेशन कॉलम रिएक्शन, नंबर थर्ड इज कॉल रिएक्शन एंड लास्ट वन फोटोमीटर. तो हर वन वाइज जो है हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट है ऑटो सैंपल. बिफोर सैंपल एनालिसिस कमर्शियली अवेलेबल स्टैंडर्ड सोल्यूशन concentration must constant all the time are analyzed to calibrate instrument. So glutamine is not present in standard as it decomposes quickly. Number second point है fresh glutamine standard solution is prepared. Number third है freshly prepared sample is injected. And number fourth है glutamine peak is identified from retention time. And last one is following sample preparation. Following sample preparation, the sample is inserted in the specified place. Then the auto sample inject 130 ml of the sample and pass it to separation column. तो सिंपल ऑटो सैंपल इन्होंने ये बताया हुआ है. देन हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट इज सेपरेशन कॉलम रिएक्शन. क्या है? सेपरेशन कॉलम इज अ स्टेशनरी फेज है. तो इसमें मोबाइल फेज हम क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि स्टेशनरी और मोबाइल 2 फेज होते हैं, तो मोबाइल फेज हम यूज़ करेंगे बफर्स को. स्पेशल pump pumps the buffer to the separation column. As amino acid are eluted at different pH medium, different pH values and buffers are used. Ion exchange reaction takes place and positively charged amino acid are bound to the negatively charged sites in the separation of column. तो इन्होंने सिंपल बात की है. द सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन, सेपरेशन किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंट फैक्टर्स. एग्जाम्पल आयन साइज हो सकता है या एब्जॉर्प्शन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेशन जो है वो डिपेंड करती है. सो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया द कॉलम टेम्परेचर इज accurately controlled and can be varied as necessary to produce the required separation. The column element is mixed with the nin-hydrogen reagent, this mixture being passed through the high temperature reaction coil.
सो अब उन्होंने कहा है कि रिएक्शन कॉइल की तरफ जाएगा, तो रिएक्शन कॉइल है क्या, आफ्टर सेपरेशन इंस्ट्रूमेंट से हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया एल्डेनिन हाइड्रोजन सोल्यूशन दैट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट कितने टेम्परेचर पे, एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देन पॉइंट है, इन द रिएक्शन कॉइल हाइड्रोजन रिएक्ट विद द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द इलेयुएट, सॉरी थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। all products give, जितने भी products हैं, sorry, all products give purple color and are estimated at 570 nanometer except proline and hydroxyproline, they give yellow color and are estimated at 440 nanometer। से उन्होंने कहा कि जितने प्रोडक्ट्स हैं वो पर्पल कलर देते हैं एंड 570 नैनोमीटर है, एक्सेप्ट उन्होंने दो हमें बता दी कि प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो वो येलो कलर देते हैं और उनकी एस्टिमेशन कितनी है, 440 नैनोमीटर है। सो लास्ट वन इज फोटोमीटर। फोटोमीटर का काम क्या है, फ्रॉम द रिएक्शन कॉइल द नीन हाइड्रोजन मिक्सचर इज फेड टू द फोटोमीटर यूनिट वेयर द अमाउंट ऑफ ईच कलर्ड कंपाउंड इज डिटर्मिन्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। मतलब फोटो से आपको पता चल रहा है लाइट की बात की जा रही है, तो जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना हमें कलर क्या करेगा, शो करेगा। द लाइट एब्जॉर्प्शन इज मेजर्ड एट 2 वेवलेंथ, दो वेवलेंथ से हो सकती है। नंबर फर्स्ट इज 570 नैनोमीटर, 570 नैनोमीटर यहाँ पे है, एंड 440 nanometer. The amount of colored compound produced is directly proportional to the quantity of amino acid present in the hydrogen mixture या इलेयुएट। ठीक है, तो इन्होंने ये बात की है कि कितनी हमारे पास अगर कलर्ड कंपाउंड के अमाउंट हमारे पास कितनी अगर हमने प्रोड्यूस करनी है तो हमारे पास अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए अमाइनो एसिड की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन उन्होंने बात की हुई है। देन लास्ट वन हम बात करते हैं रिकॉर्डर की। रिकॉर्डर क्या करता है, द फोटोमीटर आउटपुट इज कनेक्टेड टू आइदर टू अ 2 channel charts recorder which plot the amino acid concentration as a series of peaks or to an appropriate integration system। और द रिटेंशन टाइम ऑफ द पीक, सिंपल अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डर का काम क्या होता है, जो आप लास्ट में आपने जो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आपने बना लिया, अपने ग्राफ के तौर पे लेकर आना, जैसे मैंने आपको पहले बात की थी कि हम चीज़ें लेके आते हैं कि हमने क्या लास्ट में प्रोसीजर करना है। जब हमारे पास ग्राफ बन जाता है तो रिकॉर्डर का काम क्या है कि सिंपल ग्राफ लेके आना है। सो यहाँ पे आपके जो है वो डायग्राम जो है वो शो की हुई है कि सारी ये यहाँ पे ये देखें, ये रिकॉर्डर, यहाँ पे रिकॉर्डर दिखाया हुआ है कि यहाँ पे आपको ग्राफ ये शो हो रहा होगा। ये बफर सोल्यूशन है, देन सैंपल इंजेक्शन हुआ, आयन एक्सचेंज कॉलम है, फिर सेपरेटेड अमाइनो एसिड्स हैं, देन हाइड्रोजन पंप है। अगर आपको पहले ही समझ ना आ रहा हो कि रिकॉर्डर क्या है मेरी वॉइस में, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये लाइट सोर्स है और ये लास्ट में आपको रिकॉर्डिंग के शो हो रहा है कि यहाँ पे ग्राफ शो रहा है कि आपको कितना जो है वो अमाइनो एसिड मिल गया है। सो एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं, अब कहाँ का यूज़ हो सकती है, अमाइनो एसिड एनालाइजर, एस्टिमेट अमाउंट ऑफ पेप्टाइड या प्रोटीन्स, एस्टिमेट डिग्री ऑफ प्योरिटी, एस्टिमेट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स सोल्यूशन and determine amino acid composition, and last one is estimate amount of unusual amino acid। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एप्लीकेशन बताइए जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अमाइनो एसिड एनालाइजर को यूज़ करते हैं और इन चीज़ों के लिए आगे हम काम कर सकते हैं। That's end of my presentation topic. Thank you.